دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس کہانی میں اصرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں۔ میں نے اسی نقطے کو مرکز بنایا ہے۔ سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑھی یا سنی ہو۔ اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپینس بھی، پر اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی، یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں۔ یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ والسلام، پرویز بالگرامی۔ پروفیسر عثمان اور غلام رسول بھی آہستہ آہستہ جوگنگ کے انداز میں دوڑ رہے تھے۔ تبھی انہیں عمران نظر آیا اور اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک نمایاں تھی۔ غلام رسول نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کامیاب لوٹا ہے، اس لیے اس نے سرگوشی میں پوچھا، پروفیسر، سر قتل موذی قبل ایذا۔ پروفیسر عثمان نے اشارہ سمجھ لیا اور کہا، اب میرا کمال دیکھو، تم اپنی رفتار سست رکھنا۔ اور پھر اس نے کمال کی اداکاری دکھا دی۔ وہ اپنے حلیے بچڑے سے ہی کسی کالج کے پروفیسر یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ڈائریکٹر نظر آئے تھے، اس لیے جب وہ جاگنگ کرتے کرتے سموئل پر گرے تو وہ اوکے سوری کہہ کر انہیں سہارا دینے کی کوشش کرنے لگا۔ پروفیسر عثمان اپنا سینہ مسلتے ہوئے کرا رہے تھے۔ سموئل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اتنی دیر میں غلام رسول ان تک پہنچ گیا تھا۔ وہ بھی رک کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا اور ینگ مین ذرا سہارا دو، لگتا ہے دل کا دورہ پڑا ہے۔ سموئل نے غلام رسول سے کہا، ادھر میری گاڑی کھڑی ہے، آپ آئیں، میں انہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ غلام رسول بولا، نہیں، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے دفتر جانا ہے، تم ہی پہنچا دو۔ سموئل بولا، کوئی بات نہیں، گاڑی تک تو پہنچانے کے لیے سہارا دے دیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پروفیسر کے بائیں بازو کو اپنے سر سے گزار کر کندھے پر رکھ لیا اور دوسری طرف سے غلام رسول نے وزن سنبھالا اور دونوں انہیں اٹھائے ہوئے پارک کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران نے دور سے دیکھا، سموئل کے ساتھ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ پروفیسر نے بڑی خوبصورتی سے اسے گھیرا ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس گاڑی کی طرف بڑھنے لگا جس کی پچھلی سیٹ پر اس نے کار کے مالک کو بے ہوش کر کے اس طرح بٹھا دیا تھا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو۔ کار کے پاس پہنچ کر وہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سموئل اور غلام رسول پروفیسر کو عثمان کو سہارا دے کر باہر لائے اور غلام رسول نے سموئل انہیں لٹانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ عمران نے آگے بڑھ کر اس کی کمر سے ریوالور کی نال لگا دی اور گراتی ہوئی آواز میں بولا، چپ چاپ اندر بیٹھ جاؤ۔ سموئل نے جھٹکے سے کھڑا ہونا چاہا تھا مگر پروفیسر نے اتنی مضبوطی سے اس کے گلے کو پکڑ لیا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکا۔ غلام رسول نے بھی دیر نہ کی اور دونوں طرف سے اس کی کمر میں اپنا پستول لگا دیا۔ پیارے سموئل، خاموشی سے اندر بیٹھ جاؤ ورنہ انجام موت ہے، پروفیسر نے دھیمی آواز میں کہا۔ سموئل مجبور ہو چکا تھا، فرار کا کوئی راستہ بھی نہ تھا، وہ چپ چاپ اندر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ شہر سے باہر آئے، اب ویران علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ عمران نے کچھ آگے جا کر کار کو کچے میں اتار دیا۔ پتھریلے راستے پر اچھلتی کودتی کار آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک جگہ گاڑی روک دی گئی۔ اب مسٹر سموئل، سیدھے سیدھے جو کچھ پوچھا جائے بتا دو ورنہ تمہاری لاش کو سفارت خانے کے بھی لوگ ترس جائیں گے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سمائل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر پوچھا، صرف اتنا بتا دو کہ مشن کے لیے کتنے افراد یہاں آئے ہیں۔ سموئل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ ہم خدائی فوجدار ہیں، جو پوچھا جائے وہی بتاؤ۔ میں کسی مشن سے واقف نہیں ہوں۔ جھوٹ مت بولو ورنہ انجام اتنا برا ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم دشمن کو مارنے کے قائل نہیں ہیں کیونکہ مرنے والا کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ہم اذیت دے دے کر جوابات وصول کرتے ہیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کس طرح جواب دینا پسند کرو گے۔ ابھی نہایت آسانی سے یا ایذا سہ کر، عمران نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور اس کے لہجے سے صفاقی مترشے تھی۔ میں نے کہا نا، میں کسی مشن سے واقف نہیں ہوں۔
अच्छा तुम्हारी मर्जी, बताओ मत बताओ। भाई गुलाम रसूल जरा इन्हें अपनी सुई का कमाल तो दिखाओ। और इमरान का जुमला खत्म होने से पहले गुलाम रसूल ने इंजेक्शन जेब से निकाला और नीडल को फुर्ती से उसके बाजू पर मार कर निकाल लिया और वो सी करके रह गया। ये नमूना है, गुलाम रसूल सुई चबोने में मास्टर है। 1 सेकंड में 3 बार सुई चबोता है। ये पैरों से शुरू करता है और पेशानी तक ले जाता है। इस राह में आंखें भी आती हैं। इमरान ने सफाक लहजे में कहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुझे मारना चाहते हो? मार दो। हमने पहले ही कहा ना कि हम जान से नहीं मारते, सिसका सिसका कर जिंदा रखते हैं। इंसान खुद अपनी मौत मांगने लगता है। फिर गुलाम रसूल ने नीडल उठाई और उसका हाथ बुलंद हुआ और सिलाई मशीन की तरह चलने लगा। 1 मिनट में 30 से 35 बार उसने सुई चबोई होगी कि समूएल चीखा, मैं बताता हूँ। गुलाम रसूल का हाथ रुक गया। कुल 4 अफराद आए थे, 3 मर्द और 1 औरत। सवाए औरत के सब मारे गए। और उसका औरत का नाम क्या है? कैथराइन। कहाँ मिलेगी? वो ऑफिसर सोसाइटी में होगी। ऑफिसर सोसाइटी में किस तरफ? ट्राई एंगल पार्क के पास एक 2 मंजिला बंगला है। वो बंगला एक बहुत बड़े ताजर का है, मगर खुद उसे पता नहीं है कि उस बंगले में क्या हो रहा है। और उसे एक बहुत बड़े रिटायर्ड ऑफिसर ने किराए पर लेकर हमें दे रखा है और हम उसे बतौर हेड क्वार्टर इस्तेमाल करते हैं। ये तीसरा हेड क्वार्टर है और उसे ही मरकजी हैसियत हासिल है और उसमें एक खुफिया तह खाना भी है। उस तह खाने को हम बतौर स्पेशल गेस्ट रूम के तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे मरकजी अहदेदार जब भी आते हैं उसी में ठहरते हैं। कैथराइन भी उसी में ठहरी हुई है। कितने दिनों से? तकरीबन 1 साल हो चुका है, मगर ज़्यादातर वो दौरे पर रहती है क्योंकि पूरा नेटवर्क उनकी जिम्मेदारी है। वही उस मिशन की इंचार्ज हैं। मालूमात फराहम करने का बहुत शुक्रिया। अब ऐसा करो कि तुम सो जाओ, मौत की नींद में खो जाओ। ये कहकर इमरान ने उसकी कंपनी पर नाल रखकर ट्रैगर दबा दिया। हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई और सलेंसर लगे रिवाल्वर की गोली उसके दिमाग में उतरती चली गई। खून का फवारा सा उछल कर निकला और खुद इमरान के चेहरे को भिगो गया। इमरान ने लाश को कार से खींचकर बाहर निकाला और पहाड़ियों के दरमियान फेंक दिया। मियाँ भाई, इन साहब को भी यही आराम करने की इजाज़त दो। गुलाम रसूल ने गाड़ी के मालिक की तरफ इशारा किया जो बेहोशी के आलम में गाड़ी में पड़ा था। क्या हमेशा के लिए? इमरान ने पिस्तौल को फिर से बाहर निकाल लिया। नहीं, सिर्फ कुछ देर के लिए। इमरान ने दूसरी तरफ के दरवाजे को खोलकर उसे भी बाहर निकाल लिया और वहीं एक बड़े से पत्थर पर लिटाकर उसकी कंपनी पर रिवाल्वर के दस्ते से एक और वार कर दिया ताकि वह मजीद कुछ देर बेहोश रह सके और फिर वो तीनों शहर की तरफ लौट चले। और फिर इमरान ने कार का रुख ऑफिसर सोसाइटी जाने वाले रास्ते पर मोड़ दिया। उस कॉलोनी के गेट से कुछ पहले इमरान कार से नीचे उतर गया और आगे बढ़ने लगा। वो गेट पर पहुंचा और फिर रुक कर खुद ही बोला, कार को भी आज ही खराब होना था। इतनी मुश्किल से इसे गैराज तक पहुंचाकर आ रहा हूं। वो इस तरह बोल रहा था जैसे गार्ड से उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो। अरे तुम चुप क्यों हो सूफी साहब? दिखाई नहीं दे रहे? कहीं गए हैं? दरअसल उसने अंधेरे में तीर चलाया था। वॉचमैनों में ऐसे बहुत से होते हैं जिनकी दाढ़ियाँ होती हैं और उनमें भी एक ना एक शख्स की दाढ़ी ज़रूर होगी। आज उनका ऑफ है, गार्ड ने जवाब दिया। अच्छा, हाँ, एक अच्छी फिल्म लाया हूँ, देखना हो तो बंगले पर आ जाना। अच्छा, चलता हूँ। और वो अंदर दाखिल हो गया। उसने महसूस किया था कि वॉचमैन अब भी उसे ही देख रहा है क्योंकि उसकी आंखों में तैरते अफ्ताब को उसने भी महसूस कर लिया था और वो शायद इस मकसमे में था कि ये साहब किस बंगले में रहते हैं। इमरान तेज कदमों से आगे बढ़ता चला जा रहा था कि उसे एक बंगला नजर आया और उस बंगले का लान खुश्क पत्तों से अटा हुआ था। यकीनन ये बंगला खाली है, इमरान ने सोचा और आगे बढ़ता चला गया। ये सोचता हुआ कि अगर कहीं और शेल्टर ना मिला तो ये बंगला छुपने के लिए बेहतर है। और कुछ आगे बढ़ने के बाद उसे ट्राई एंगल पार्क नजर आ गया। वो 3 कोनों का पार्क था, शायद इसीलिए उसे ट्राई एंगल पार्क कहते हैं। और उसके बाद 2 मंजिला बंगला और उस बंगले की तरफ बढ़ते हुए इमरान सोच रहा था कि इसमें दाखिल कैसे हुआ जाए। तभी उसकी नज़र उसके बराबर वाले बंगले पर पड़ी और उस बंगले की हालत ज़ार अच्छी ना थी और वह उसी बंगले की तरफ बढ़ता चला गया। और फिर दरवाजे पर पहुंचकर उसने बेल बजाई।
अंदर कहीं दूर घंटी बजी। घंटी की आवाज़ बता रही थी कि वो पुराने अंदाज की है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बड़ी बी नजर आई। इमरान ने गेट पर लगी नेम प्लेट पढ़ ली थी जिस पर मेजर अकरामुल्लाह बंगश लिखा था। इसी मुनासबत से उसने बड़ी बी को सलाम करके कहा, कर्नल फ़रक का बेटा हूँ, कराची वाले फ़रक, और उन्होंने मुझे मेजर अकराम से मिलने को कहा था। मगर बेटा, मेजर इकराम का तो 6 माह पहले इंतकाल हो गया। मैं उनकी बेवा हूँ, आओ अंदर आ जाओ। इमरान अंदर आ गया। ड्राइंग रूम के सोफ़े में भी इंतहाई पुराने डिज़ाइन के थे। ऐसे सोफ़े अब शायद ही नज़र आते हों। इमरान उसी जहाज़ी सोफ़े पर बैठ गया और बड़ी बी भी बैठ चुकी थी। दोनों ही खामोश थे और तभी बड़ी बी बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है, चाय पी जाए? अगर आपको तकलीफ़ ना हो, बल्कि रहने दें, सुबह मैं होटल से निकलते वक्त पी कर निकला था। लेकिन बेटा, कर्नल फ़रक किस रेजिमेंट के थे? मुझे उनके दोस्तों में ऐसा एक नाम भी नहीं मालूम। इमरान अंदर ही अंदर घबरा उठा क्योंकि उसे ये तो भी मालूम ना था कि खुद बंगश किस रेजिमेंट में थे। उसने अंधेरे में तीर चलाया। मेरे अब्बू जब लाहौर छावनी में थे तो ठहरो बेटे, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। और वो किचन की तरफ बढ़ती चली गई। वो उधर गई और इमरान उठकर बाथरूम में चला गया और उसने वाश बेसन का नल खोल दिया और फिर उसने वाश ट्रांसमीटर पर राब्ता किया। दूसरी जानब से फ़ौरन कॉल रिसीव की गई। हेलो, मैं बराबर वाले बंगले में हूँ, मेजर बंगश के बंगले में। मैंने बड़ी बी को बता दिया है कि मेरे चचा अहमद ताहर और भाई जमालुद्दीन आ रहे हैं। जी अच्छा, आ रहे हैं, ये कहकर उसने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। बाथरूम से निकलकर उसने सोफे पर खुद को गिरा लिया और तभी बड़ी बी चाय का कप लिए हुए दाखिल हुई। लो बेटा, चाय पियो। चाय का उसने पहला सिप लिया था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और बड़ी बी फ़ोन की तरफ बढ़ी कि इमरान ने कहा, शायद मेरे अंकल और भाई आए हैं, और फिर उसने रिसीवर उठा लिया। दूसरी जानब से सिक्योरिटी गार्ड था। उसने कहा, आपके 2 मेहमान आए हैं। हाँ, अहमद ताहर, जमालुद्दीन नाम के 2 शख्स आने वाले थे, इमरान बोला। लेकिन जनाब, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ज़मानत ले रहा हूँ। बड़ी बी बड़े गौर से उनकी बातें सुन रही थी। जल्दी से रिसीवर लेकर माउथपीस में बोली, हाँ, अहमद ताहर और जमालुद्दीन को भेज दो। कुछ देर बाद प्रोफेसर उस्मान और गुलाम रसूल आ गए और उन दोनों को भी बड़ी बी ने चाय लाकर दी। फिर बोली, आप लोग खाना खाकर जाना, मैं बना रही हूँ। जब आप ज़िद कर रही हैं तो यही सही। बड़ी बी उन्हें बिठाकर किचन की तरफ चली गई। आंटी, अगर आप इजाज़त दें तो हम घूम फिर कर खुद ही इस इमारत को देख लें। क्यों? इमारत में ऐसी क्या खूबी नज़र आ गई? एक जगह बैठे बैठे बोरियत हो गई। यही सोचकर मैंने कहा, ठीक है, जाओ। इजाज़त मिलते ही वो तीनों सीधे छत पर पहुँचे और टहलते हुए किन अखियों से बराबर वाली बिल्डिंग का जायज़ा लेने लगे। बिल्डिंग खासी नीची थी और उसे बआसानी पार कर सकते थे। यहाँ से दाखिल हुआ जा सकता है, इमरान ने कहा। यही मुनासिब है, कुछ और अंधेरा फैलने दो। ये कहकर प्रोफेसर वापसी के लिए मुड़ गए। वो लोग नीचे आए तो बड़ी बी किचन की बजाय बेड पर लेटी थी। क्या हुआ आंटी? इमरान ने पूछा। सर चकराने लगा है। भाई, बुढ़ापे से ज़्यादा बड़ी बीमारी और कौन सी होगी? बड़ी बी नकाहत भरी आवाज़ में बोली। मेरे पास दवा है, अगर कहें तो मैं दे दूं, प्रोफेसर ने कहा। अभी आप तवानाई महसूस करेंगी, मैं खुद भी उसे इस्तेमाल करता हूं। प्रोफेसर ने जेब से पर्स निकाला और पर्स में रखी 2 गोलियां बढ़ा दी। बड़ी बी ने गोलियां पानी से निगल लीं। अब आप कुछ देर के लिए लेट जाएं, प्रोफेसर ने कहा और बाहर निकल आए। दूसरे में कमरे में पहुंचकर बोले, बड़ी बी को मैंने नींद की गोलियां दे दी हैं और उनकी तरफ से अब कोई खतरा नहीं। आओ बाहर चलते हैं। और वह सब बाहर लान में आ गए। शाम रात में बदल चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था। इमरान ने लान में पड़ी हुई एक टूटी हुई कुर्सी को खड़ा किया और उस पर चढ़कर उसने दीवार के मुंडेर पकड़ ली और दोनों हाथों पर वजन डालकर उठता चला गया और फिर से दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया और उसके पीछे पीछे प्रोफेसर और गुलाम रसूल भी कूद गए। वो तीनों एक के बाद एक कूदे थे और जहां पैर ज़मीन से मिस हुए बस वहीं के हो गए। सीनों को ज़मीन से चिपकाए हुए सीने के बल लेटे रहे और घड़ी की सुई खिसकती रही। फिर उन्हें अंदाज़ा हो गया कि गेट पर मौजूद चौकीदार अपनी जगह बैठा ऊँघ रहा है या इतना गफील हो चुका है और यूं भी कॉलोनी के गिर्द जैसा सख्त इंतज़ाम था
जितनी कड़ी सिक्योरिटी थी, ऐसे में तो परिंदे को भी पर मारते हुए खौफ आता होगा। अब इन तीनों ने सांप नकल मकानी शुरू कर दी और सीने के बल जमीन पर रेंगने लगे। रेंगते रेंगते बढ़ने लगे। फूलों की क्यारियों के दरमियान से होकर वो उस मकाम पर पहुंचे जहां से बरामदा शुरू हो जाता था। बरामदा कुछ ऊंचा था और सबसे पहले इमरान उछलकर ऊपर चढ़ा और फिर बाकी दोनों। वो तीनों बरामदे के पक्के फर्श पर रेंगने लगे और रेंगते हुए दरवाजे पर पहुंचे और फिर खोलकर अंदर दाखिल हो गए। कमरा हाल नुमा था, उसमें सोफे पड़े थे और उन्होंने उस कमरे को पार किया और एक दूसरे कमरे में आ गए। उस कमरे में एक बेड बिछा हुआ था और उस पर कोई लेटा हुआ था। लेटी हुई हस्ती पर नजर पड़ते ही वो तीनों बुरी तरह चौंक गए और चौंकने की बात ही थी। उनके वहमो गुमान में भी ना था कि उससे यूं दुश्मनों की खचार में मुलाकात होगी। उसने भी उन तीनों को देख लिया था और उसके चेहरे पर हैरत उभर आई और वो हस्ती उठकर बेड पर बैठ गई और उसने हैरत भरी आवाज में कहा था, तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? अपने पैरों से चलकर गुलाम रसूल ने कहा। तो आ गए हो, मगर अब जिंदा वापस नहीं जाओगे, उसने उन तीनों को मुखातब करके कहा। अब मैं समझा कि तुम ही कैथराइन हो। प्रोफेसर बोले, जी हाँ, कैथी मेरा निक नेम है, वो मुस्कुराकर बोली। साथ ही साथ उसने तकिए के नीचे से एक छोटा सा रिवाल्वर निकाल लिया था। इस खिलौने को नीचे रख दो, प्रोफेसर ने समझाना चाहा, ताकि तुम लोग मुझे ज़हर कर लो। ज़हर तो तुम हो चुकी हो, इमरान ने कहा। तुम्हारा चौकीदार मारा जा चुका है और पूरी इमारत हमारे आदमियों के नरगे में है। बिल्कुल गलत, इस इमारत के तमाम दरवाजे खुद कार हैं, हर दरवाजे पर कैमरा है। तुम लोगों की पूरी फिल्म बन चुकी होगी। अच्छी बात है, पूरे पाकिस्तान में नुमाइश के लिए पेश कर देना, इमरान ने कहा। और उसने सिर्फ उसी पर इत्तफा ना किया, बल्कि उसे बातों में लगाकर उसने छलांग लगाई थी। छलांग इस तरह थी कि वो संभल ना सकी। इमरान उसके पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ मारता हुआ दूसरी जानब कूद गया। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और इस मौके से फ़ायदा ना उठाना बेअक्ली होती। गुलाम रसूल ने मौका ज़ाया ना किया और कैथी के बवाए कट बालों को पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया। वो बेड पर काफ़ी आगे तक घिसट गई थी। गुलाम रसूल ने उसकी कुव्वत का गलत अंदाज़ा लगाया था। कैथी लम्हा भर में फिर संभल गई और उसने खुद को गेंद की तरह उछाला था। इस हैरत अंगेज कमाल के साथ वह बेड से नीचे उतर गई। फिर उसने जिस्म को मोड़कर ज़बरदस्त किस्म की उछाल भरी। उस जंप के साथ वो प्रोफेसर के पीछे आ गई थी। पीछे आते ही उसने प्रोफेसर के गले में हाथ डालकर आराम लाख लगा दिया था। ये सब कुछ लम्हे भर में हो गया था। फिर वो गुर्राई हुई आवाज़ में बोली, खबरदार, अब किसी ने मुझ पर हमला किया तो प्रोफेसर की गर्दन तोड़ दूंगी। कैथी का लाख इतना सख्त था कि प्रोफेसर की आंखें हलकों से उबलने लगी थी, सांस रुकने लगी और चेहरा सुर्ख हो गया। कैथी कुछ भी हो औरत थी। नादानस्तगी में प्रोफेसर ने हाथ चलाया था और उनका हाथ उसके जिस्म पर दबाव का बाइस बना था कि कैथी का जहन मुंतशिर हो गया। बस एक यही लम्हा प्रोफेसर के काम आ गया और उन्होंने दूसरे हाथ से भी वही हरकत की। साथ ही साथ जिस्म को झटका दिया और वो झटक कर दूर जा पड़ी। कैथी दोबारा उन पर झपटी, मगर रास्ते में ही गुलाम रसूल ने उसे रोक लिया। रोकने के लिए उसने सिर्फ अपना पैर बढ़ा दिया था और कैथी उसके पैर से उलझ कर गिरी और उसके गिरते ही इमरान ने उसे फुटबॉल बना दिया। एक के बाद एक कई किकें लगा दी थी। ऐसी ज़बरदस्त किक सीमेंट की दीवार पर पड़ती तो वो चटक जाती। कैथी तो फिर भी औरत थी, अपनी चीखों को रोक ना सकी। सर की जगह से फट गया और खून रसने लगा। इमरान ने उस पर बस ना किया, किसी रेसलर की तरह फुर्ती से उसे उठाया और हवा में उछाल कर घुटना खड़ा करके खुद बैठ गया। कैथी सीधी उसके घुटने पर गिरी और उसकी तेज चीख गूंजी। फिर वो बेहोश हो गई। इमरान ने वक्त ज़ाया किए बगैर पेडेस्टल फैन के तार को झटका मारकर तोड़ा और उसी इलेक्ट्रिक वायर से उसे बांध दिया और फिर उसे पंखे से लटका दिया। ये सब कुछ बमुश्किल 5 मिनट में उसने कर दिखाया था। वो तीनों अब उसे होश में लाने की तरकीब कर रहे थे ताकि ज़रूरी मालूमात हासिल की जाए।
सर, मैं एक राउंड लगाकर आता हूँ। वैसे मुझे कभी उम्मीद है कि ये बंगला पूरी तरह खाली है, फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है। इमरान बाहर निकल गया। इमरान के बाहर जाते ही गुलाम रसूल ने जग में पानी भरे पानी को कैथी के चेहरे पर उंडेल दिया। पानी की छींटों ने उसे होश में लाया और वो आंखें झपका कर बोली, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। हमने बुरा किया कब है? जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं, गुलाम रसूल बोला। हाँ तो बीबी, अब ज़रा टेप रिकॉर्ड की तरह बजना शुरू हो जाओ। तुम कौन हो, क्या करना चाहती हो, क्यों हमारा पीछा कर रही थी? हमारा ताल्लुक शी से है। ये माफिया से बड़ी तंजीम है। माफिया वाले गुंडागर्दी, मनशियात वगैरह का कारोबार करते हैं और हम उनसे भी ऊंचा काम करते हैं। हम छोटे छोटे मुल्कों की हुकूमत गिराते बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, लड़ाते हैं। बड़ी हुकूमतें हमारी खिदमात हासिल करती हैं और हम उनके मफाद की जंग भी लड़ते हैं। कैथी बोल रही थी। वाकई वो ट्रेंड एजेंट थी। देखने में धान पान सही, मगर अंदर से इतनी मजबूत। इतनी देर से पंखे से बंधी लड़की थी, मगर उसकी पेशानी पर शिकन न थी। वो रुक रुक कर बता रही थी। दरअसल इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर मुल्क में सुपर पावर्स का अमल दखल रहता है। इस वक्त दुनिया के नक्शे पर दो ही मुल्क ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो वाहिद सुपर पावर बनकर रहें। इस सिलसिले में साजिशों का जाल तैयार होता रहता है। दोनों ममालिक के सुपर ब्रेन इस सिलसिले में साजिशें बनते रहते हैं, जिन पर अमल कराने की जिम्मेदारी इनके एजेंटों की है। ये एजेंट हर मुल्क की अहम हस्तियों के गिर्द घेरा डाले रहते हैं। इस मुल्क में भी हैं। जिस तरह ये दोनों सुपर पावर तमाम तरक्की पजीर ममालिक में अपना असर शौक बरकरार रखना चाहती हैं, यहाँ भी यही चाह रहे हैं। और वो नहायत निपे तोले अंदाज में बोल रही थी। दोनों बड़ी ताकतों के सियासी नज़रियात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। यूँ कि ये अफराद चाहे बरसरी इक़्तिदार हों या इक़्तिदार से उनका कोई ताल्लुक़ ना हो, किसी न किसी नज़रिए से ज़रूर असल कबूल करते हैं। मुमकिन है कि उस वक़्त भी मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल अफराद सदर ममलकत के इर्द गिर्द हों। यह फितरी बात है कि हर शख्स कोशिश करता है कि वह दूसरे को भी अपना हम ख्याल बना ले या बे अल्फाज देकर उसकी फ़िक्र का रुख अपने नज़रियात की तरफ मोड़ दे। इन दिनों अवान हुकूमत में यही कशमकश जारी है। नतीजन किसी भी नज़रिए के हामिल ग्रुप को इस सिलसिले में बहरहाल बरतरी हासिल हो जाएगी। उसका इन्हसार उन अफराद की सलाहियत, खलूस नीयत और सदर ममलकत से कुर्बत पर है। बाएं पाजू का बल्ला बारी रहता है या दाएं पाजू का। मुल्क की खारजा पॉलिसी इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है। हम लोग इसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जिस कुव्वत ने हमारी सर्वस हासिल की है, हम उसी मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारी राह में क्यों आई थी? प्रोफेसर ने पूछा। हमें इसराइल से यह टास्क मिला था कि आपको तलाश किया जाए। आप इसी मुल्क में हैं। हमारे आदमियों ने बिल आखिर आपको ढूंढ लिया। हमने नहायत खामोशी से आपको उलझा लिया। हमने बीक वक़्त 3 महाज खोले थे। पहला महाज हिप्नोटिज्म का था, यानी आपको दूसरे जन्म की थ्योरी में उलझा लिया जाए। आप जनीन पर काम कर ही रहे थे, इसलिए इस मसले में बाआसानी उलझ जाते और उलझ गए कि जिस बात का जिक्र कुरान में नहीं है वो सच कैसे हो गया। दूसरा महाज आपको यहाँ से आउट कराकर भारत भेजने का था ताकि आपको वहाँ मरवा दिया जाए। आपकी लाश मिलती तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती और तमाम दुनिया की मीडिया गरे मुर्दे अखाड़ने लगती। आपकी लेबॉर्ट्री पाकिस्तानी इलाके में मिलती। इस पर हिंदुस्तानी खूब वावेला मचाते और पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तानी हुकूमत पर डालकर बदनाम किया जाता। इस तरह पाकिस्तानी हुकूमत को भी ब्लैक मेल करने का हमें मौका मिल जाता। और तीसरा, गुलाम रसूल ने पूछा। तीसरा महाज मैं खुद थी, यानी जो आपके साथ 8 साल से थी। दरअसल अपनी तंजीम के इशारे पर आपके पास थी, इसलिए मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाकर भेजा गया, जबकि यहाँ हमारी तंजीम के बड़े बड़े ओहदेदार मौजूद थे, मगर मेरी वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। हमें मुतल्लक एहसास न था कि तुम आस्तीन में पल रही हो, प्रोफेसर ने दुख भरे लहजे में कहा। शायद उन्हीं वाकया बहुत दुख हुआ था कि उनकी शागिर्द बनकर उसने उन्हीं की पीठ में छुरी मारी थी।
आखिर कोई यहूदी है ना, ये तो इन लोगों की फितरत का हिस्सा है। गुलाम रसूल बोला, मैं तो पहले ही कहता था कि इस पर भरोसा ना करें, सांप डसना भूल सकता है मगर यहूदी नहीं। गुलाम रसूल के तंज पर कैथी ने अपना सर झुका दिया। प्रोफेसर यही समझे कि वह पेशमान है, मगर बात कुछ और थी। सर झुकाकर उसने जुबान निकाल ली थी और गले में पड़े हुए तावीज़ को जुबान से पकड़ने की कोशिश करने लगी थी। तीसरी कोशिश में धागा कुछ ऊपर उठा और फिर तावीज़ उसके मुंह तक पहुंच गया। उसने तावीज़ को दांतों तले दबाकर कहा, सर मैंने आपसे कोई गद्दारी नहीं की, सिर्फ अपनी ड्यूटी दी है। अच्छा खुदा हाफिज। और फिर उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अरे इसने साइनाइड खा लिया है, प्रोफेसर बोले। तब तक देर हो चुकी थी। साइनाइड ने अपना असर दिखा दिया था। उसकी लाश को नीचे उतारकर इमरान ने कहा, सर अब क्या प्रोग्राम है? निकल चलो। लेकिन जाएंगे कहाँ? इस शहर से ही नहीं, इस मुल्क से भी दूर निकल जाना है, प्रोफेसर ने दुख भरे लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गए। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।